Guys, welcome back to my channel. So in this video, I'll be giving you the summary of this hearts and hand paragraph wise only, but I'll be not reading the text. You can relate it with that, so it will be a quick one. Okay. So what happens in the first paragraph? We simply come to know that there is a place named as Danver, and there are so many passengers which are coming into the coaches. Means there is a train which is eastbound, and the name is the B&M Express, and so many passengers are entering into the coaches. So नाउ वी आर कमिंग ऑन टू द टॉक ऑफ अ वन कोच. अब हम सिर्फ एक कोच के बारे में बात करेंगे. उस कोच में क्या होता है, एक प्रिटी यंग विमेन वॉज सिटिंग एंड शी वॉज ड्रेस्ड वेरी वेरी ग्रेसफुली. बहुत अच्छे से वो तैयार होकर बैठे थे एंड शी वॉज सराउंडेड बाय ऑल द लग्जरियस comforts of an experienced traveler. It simply means that, it seemed as if she had been through this train journey so many times. So she knew that what all is required for a nice journey, for a better journey. So she was having all those things required for the good journey, बहुत अच्छी smooth journey के लिए. And now they have now explained us about the young women who was already sitting there, and now they're telling us about the newcomers. So she was the one already sitting there. So now let us talk about the newcomers. So those newcomers, one of them was a marshal and the other one was a victim. They were both handcuffed together. This is the thing which tells us that one of them was a prisoner and the other one was the what, marshal. Not yeah, marshal, right? So one of so let us talk about their appearances. So let me tell you that Mr. Easton, जो कि victim था, he was very very handsome. Victim handsome था तो confusion तो होने के बहुत chances है, ठीक है. With a bold frank countenance, was very very sad, and manner means full of manners. बहुत उसे अच्छा पता था कि किस तरह से रहना है, ठीक है. कपड़े डालने का बहुत सही सा ढंग था. Whereas the marshal was not very nicely dressed. He was roughly dressed and he was heavily built, glum faced person, ठीक है. वो भी बहुत ज़्यादा सैड था. सो ये हो गई उन दो बंदों की अपीयरेंसेस जो कि नए आए थे उस डब्बे में, ठीक है. सो अभी हम जैसे ट्रेन में एंटर करते हैं तो क्या होता है, दोनों साइड्स पे सीट होती है. हम उस दोनों सीट्स के बीच में से ट्रैवल करते चलते चलते देखते हैं कि हमें कहाँ पर सीट खाली मिलती है. अब वो दो जाने थे, वन वॉज हैंडसम एंड द अदर वन वॉज रफल्ड, बट उन्हें सीट सिर्फ एक ही मिली थी. और वो भी कहाँ पर मिली थी, वो जो यंग ब्यूटिफुल वुमेन दैट प्रेटी वुमेन वॉज सिटिंग, उसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पर उन्हें बैठने के लिए जगह मिली थी, ठीक है. अब यहाँ पर वो दोनों जो थे वो बैठ गए, ठीक है. As they passed down the aisle of the coach, they could see that only one seat is there where we can sit. So they adjusted themselves there, ठीक है. अब अभी उसने जो था मिस्टर ईस्टर्न, उसने देखा नहीं था कि भाई ये यंग वुमेन तो मेरी पुरानी दोस्त है. तो बट यंग वुमेन ने देख लिया था. पहले उसने देखा, दूर से देखा, ठीक है, तो उसने अपना मुंह साइड कर लिया. बट जब उसे लगा कि अरे ये तो मेरा फ्रेंड है, तो उसने फिर से देखा. पहले उसने दूर से देखा and with swift disinterest, means no interest, she had shown no interest. But then when she realized that he is my friend, and then he looked him with a lovely smile brightening her countenance and a tender pink tinging her rounded cheeks. So what is happening is that, so as soon as he, अभी आपके सामने जो इंसान बैठा, आप उसे पहले तो देखोगे डिसइंटरेस्ट. अगर आपको जानते तो फिर आप उन्हें बुलाते हो, हाय हेलो करते हो ना. तो सिमिलरली वो भी वैसे ही कर रही थी. तो उसके जो टेंडर पिंक टिंजिंग कलर, ठीक है, हर राउंडेड चीक्स, उसकी जो चीक्स थी वो सारी रेड हो गई थी, बिकॉज शी वॉज वेरी वेरी हैप्पी टू मीट हिज हर ओल्ड फ्रेंड. तो उसने अपना हाथ बाहर निकाला और उसने शी स्पोक विद फुल बहुत अच्छी प्यारी आवाज़ में उसने बोला. तो उसने बोला
कि आप नहीं क्या मुझे बुलाओगे, मतलब अगर वो उसे था कि जैसे वो मेरे को सामने से क्यों नहीं बुला रहा है ना, होता है ना सभी में, तो वो उसे फिर बोल देती है, वेल मिस्टर ईस्टर्न इफ यू मेक मी स्पीक फर्स्ट आई सपोज आई मस्ट, कि अगर आप चाहते हो कि मैं पहले बोलूँ तो मैं बोल दूंगी। सो शी इज़ अ काइंड ऑफ अ टीजिंग दैम, मतलब ऐसे मजाक कर रही है, ठीक है। सो इट्स डोंट यू एवर रिकॉग्नाइज योर ओल्ड फ्रेंड्स व्हेन यू मीट देम इन द वेस्ट, क्या तुम अपने पुराने दोस्तों को पहचानते नहीं हो जब तुम उसे वेस्ट में मिलते हो? अरे वो एकदम से उसे बहुत ज़्यादा एम्बैरेसमेंट होती है कि भाई मैंने पहचाना ही नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, इतना मेरी अच्छी फ्रेंड थी वो, ठीक है। और है भी, younger man roused himself sharply at the sound of a voice, जैसे वो कुछ बोलती है वो एकदम से खड़ा हो जाता है, and he was the one who struggled with a slight embarrassment, and that embarrassment he threw off instantly, उसने बट एकदम से उसे ओवरकम कर लिया, and then उसने उसके साथ उसका हैंड शेक करा, बट विद द लेफ्ट हैंड। तो सबसे पहले उन्होंने हमें बता दिया कि जो विमेन थी वो किस तरह की दिखती थी। शी वॉज ग्रेसफुली ड्रेस सराउंडेड बाय ऑल द कम्फर्ट्स। फिर उन्होंने बता दिया जो दो न्यू कमर्स आए थे उनमें से एक तो बहुत ज़्यादा हैंडसम था, बोल्ड फ्रैंक काउंटेनेंस एंड मैनर, और जो दूसरा था ही वॉज वेरी रफल्ड, मतलब अच्छे से ड्रेस्ड अप नहीं था इतना, ठीक है, अच्छे से ड्रेस नहीं डाली हुई थी, ठीक है। और जैसे जैसे वो सीट ढूंढते ढूंढते आगे आगे निकलते हैं तो उन्हें सिर्फ एक सीट बैठने के लिए मिलती है, और वो सीट कहाँ पर होती है, उस यंग विमेन के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे। तो उस यंग विमेन ने जैसे ही उन दोनों को देखा तो उसने देखा कि इनमें से एक तो मेरा ही फ्रेंड है मिस्टर ईस्टर्न, तो उसने उससे फिर बात करनी स्टार्ट करी। यू नो देयर वाज अ लवली स्माइल ऑन हर फेस एंड टेंडर पिंक, देयर वाज अ पिंक कलर, मतलब उसकी जो चीक्स थी वो बहुत यू नो कलर जैसे पिंक लाल हो जाती है ना वैसे, ठीक है। तो now she was the one who started talking to him, and he also told him that why didn't you recognize me, है ना, आपने मुझे इतना पहचाना क्यों नहीं। तो बेसिकली उसने देखा नहीं था, और अगर देख भी लिया होता तो ही वुड हैव नेवर सेड, बिकॉज ही न्यू कि मैं तो प्रिजनर हूँ, मैं पकड़ा जाऊँगा ना फिर। तो उसके थोड़ी सी एम्बैरेसमेंट हुई विच ही इमीडिएटली थ्रू ऑफ, एंड देन क्लैस्ड अ फिंगर विद हिज लेफ्ट हैंड। तो अपने लेफ्ट हैंड के साथ हैंड शेक कर दो, भाई राइट हैंड का है, बिकॉज हैंड शेक तो हम राइट हैंड से करते हैं, फाइन। सो इट सेज, I remember you, dear. It's Miss Fairchild, he said with a smile. Please excuse me for the other hand. I cannot use that hand. So now why he can't use? You need to tell that also, no? So it is being explained here that why he cannot use his right hand, because it had been bound, because you know he was taken to the prison, right, उसे जेल में लेकर जा रहे थे। तो होता क्या है कि जो पुलिस मैन होता है ना वो प्रिजनर के साथ अपने वो जो हथकड़ी होती है ना उसे बांध लेती हैं टू कीप देम फ्रॉम रनिंग अवे, ताकि वो भाग ना जाए। तो सिमिलरली उन्होंने क्या करा हुआ था, जो उसका हैंड था वो किसके साथ टाइड अप था, शाइनिंग ब्रेसलेट। दिस इज द काइंड ऑफ अ सिचुएशनल आयरनी है, बिकॉज वो हथकड़ी को शाइनिंग ब्रेसलेट के साथ कंपेयर करा जा रहा है ना। तो इट सेज द ग्लैड लुक। अब ऑब्वियसली सामने वाला बंदा हो गया, नहीं ये पुलिस में ये कैसे, मतलब ये कब से वो प्रिजनर हो गया, इसने क्या गलती कर दी है, इसे क्यों लेकर जा रहे हैं, तो उसे यही लगा पहले। और एकदम से जो उसका इतनी खुशी थी, दो टेंडर पिंक टिंजिंग हर कलर वी रेड ना, एंड लवली स्माइल, इट हैड ऑल गॉन, एंड इन प्लेस ऑफ दैट देयर वाज जस्ट हॉरर 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 ऑन हिज फेस। एकदम से वो डर गई थी, ग्लो फेडेड फ्रॉम हर चीक्स, एकदम से उसके जो लिप्स थे दे ऑल वर पार्टेड, मतलब हम एकदम से स्टंट होकर खड़ी हो गई थी, एकदम से हैरान हो गई थी हो क्या गया है। अब ईस्टर्न को फर्क नहीं पड़ा, ईस्टर्न ने देखा नहीं कि भाई उसे बहुत ज़्यादा असर पड़ा है, उसके स्माइल्स में सब ख़त्म हो चुकी है, मैं तो गया काम से, ठीक है। तो उसने ये बात को रिकॉग्नाइज नहीं करा। वेयर एज जो ग्लम फेस मैन था जो कि मार्शल था, बिकॉज मार्शल्स पुलिस मैन तो बहुत ज़्यादा होते हैं ना, उनकी जो आईज होती है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, बहुत जल्दी चीज़ों को पकड़ लेते हैं और जज भी कर लेते हैं। तो सिमिलरली जो वो ग्लम फिश मैन था वो मार्शल था, तो उसने ये चीज़ समझ क्या था, वो ही हैड वो पहली बार तो वो गर्ल को काफ़ी टाइम से देख रहा था, उसके एक्सप्रेशंस को काफ़ी टाइम से देख रहा था कि मतलब किस तरह से रिएक्ट कर रही है, बिकॉज ही न्यू द रियलिटी, वेयर एज उसे नहीं पता था ठीक है।
सो ही वॉज सीइंग हिम विद द वेल ग्लांसेस, बहुत चतुर आंखों से उसे देख रहा था, बहुत ज़्यादा ध्यान से देख रहा था उसे, कि और उसे ये बात समझ में आ जाती है कि वो डर गई है ये देखकर, ये समझकर कि वो एक क्या है, विक्टिम है। तो वो उसे ये बताने की कोशिश करता है, वो उसे ये कहने की कोशिश करता है कि भाई वो विक्टिम नहीं है, वो तो मार्शल है। तो ही वो झूठ बोल रहा है उसे, वो झूठ बोल रहा है उसे, ठीक है, कि क्या झूठ बोल रहा है, क्या झूठ बोल रहा है कि वो मार्शल है। क्यों? क्योंकि वो चाहता नहीं है, उसका दिल बहुत अच्छा है, वो नहीं चाहता है कि इस प्रिजनर की इस वजह से, इन सब की वजह से इन दोनों की दोस्ती में कुछ भी फ़र्क आए। तो वो उसे कह देता है, तो मतलब वो उसे डायरेक्टली नहीं बोलता है कि भाई आप उसके फ्रेंड हो, ये मार्शल है, ऐसे कुछ नहीं करता है। वो इनडायरेक्ट वे में बोलता है। क्या इनडायरेक्ट वे में बोलता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ही सेज कि प्लीज़ एक्सक्यूज मी फॉर स्पीकिंग, मतलब मैं आपके बीच में बोल रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट। एंड उसे बोलता है कि प्लीज़ आप इन्हें कह दो ना, ये आपके फ्रेंड है ना, आप इन्हें प्लीज़ कह दो ना कि वहाँ पर जाके मेरे हक में भी कुछ बोलें, फिर मेरा छूटना थोड़ा आसान हो जाएगा। ये मुझे प्रिजन में लेकर जा रहे हैं। कौन सी प्रिजन में लेकर जा रहे हैं? लेवनवर्थ प्रिजन में। वहाँ पे मेरे को 7 साल के लिए मेरे को कैद कर कर रखेंगे। अब उसे समझ में आ जाता है कि भाई ये तो मार्शल है, ये जो बोल रहा है वो प्रिजनर है। तो वो बात को समझ आती है, ठीक है, गलत बात को समझ आती है बेसिकली। देन शी सेज, ओ, अब विद अ डीप ब्रेथ एंड रिटर्निंग कलर, तो उसका जो सारा जो ग्लैड लुक्ड एट हर ऑल फेडेड, इट अगेन केम बैक, एवरीथिंग वाज बैक विद अ डीप ब्रेथ। ओके फाइन, सो दैट इज व्हाट यू आर डूइंग हियर। तो वो कहती है कि ओ यू आर अ मार्शल हियर नाउ मिस्टर ईस्टर्न। अब वो उसका उसे समझ आ जाता है कि भाई ये तो झूठ बोल रहा है। अब क्योंकि ये झूठ क्यों बोल रहा है, बिकॉज ये भी चाहता है कि मैं इसे बताऊँ कि भाई मैं मार्शल हूँ, ऐसे, ताकि वो डर गई है, ताकि उसे ये ना लगे कि भाई मेरे फ्रेंड के साथ क्या हो गया। तो वो कह देता है कि माई डियर मिस फेयर चाइल्ड, काम तो कुछ करना ही था ना, इजंट इट, काम तो कुछ करना ही था ना, आई हैड टू डू समथिंग एंड मनी हैज़ अ वे ऑफ टेकिंग द विंग्स अन टू इट सेल्फ। इट मीन्स दैट कि मनी, तो जैसे बोलते हैं ना कि ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रहती, हमें कमाना होता है, और आजकल तो मनी इज़ एवरीथिंग, है ना, मनी के बिना नहीं आपकी लाइफ चल सकती है। तो मनी हैज़ अ वे ऑफ टेकिंग विंग्स अन टू इट सेल्फ, मनी फ्लाइज अवे, वो तो एकदम से बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाती है मनी तो, ठीक है। एंड यू नो कि वॉशिंगटन जैसी सिटी में तो पैसे के बिना हम रह ही नहीं सकते, है ना, पैसा तो चाहिए रहने के लिए। तो फिर मैंने देखा कि भाई वेस्ट में मेरे को ये जॉब मिल रही है, और मैंने सिंपली वो जॉब ले ली, ठीक है, ठीक है। एंड वेल अ मार्शलशिप, बट वो उसे ऐसे काइंड ऑफ अ टीज करते हैं, मे बी एम्बेसडर, maybe she was in a relationship with that person, it is not clearly mentioned in the story, so we can just assume nothing else, ठीक है। तो मार्शल ही says it, बट मार्शलशिप एम्बेसडरशिप जितनी हाई तो नहीं है ना पोजीशन। तो वो जब उसे बोलती है कि अरे तुम मार्शल हो, तो वो कहता है हाँ मैं मार्शल हूँ, काम तो कुछ करना ही था ना, पैसे तो कमाने ही थे ना, पैसे के बिना तो जिंदगी नहीं चलेगी। तो वो कहता है बट marshalship isn't quite as high as ambassadorship. So it says ambassador doesn't call him anymore. मतलब जब अभी उसके साथ वो नहीं थी रिलेशनशिप में, वो उसे नहीं अब बातचीत में थी, ऐसा हो सकता है ना, इट इज़ नॉट क्लियरली मेंशन, मे बी इट्स समथिंग एल्स, फाइन, ही नीड नॉट एवर हैव डन सो। तो कहता है वो तो आपके साथ कंपैरिजन करने के लायक भी नहीं है वो इंसान, तो यू ऑट टू नो दैट। एंड अब वो पहले वो जब उसे बोलती है कि एम्बेसडर के बारे में बात, तो उसके बारे में बहुत कम बोलती है, और फिर वापस ईस्टर्न पे आ जाते हैं और उससे बोलते हैं ओ नाउ यू आर वन ऑफ दोज डैशिंग वेस्टर्न हीरोज, यू राइड एंड शूट एंड गो, आप शूट भी करते हो, राइड भी करोगे, एंड यूल काइंड ऑफ गो इन टू ऑल काइंड ऑफ द डेंजर्स, आप हर एक काइंड ऑफ डेंजर्स में जाओगे, जो कि वॉशिंगटन की लाइफ से बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है। एंड यू नो विल बी मिस्ड फ्रॉम द वर्ल्ड, हम आप सबको बहुत मिस करेंगे, आपको हम बहुत मिस करेंगे। सबसे पहले वो उसे बोलती है, क्या बोलती है कि सबसे पहले वो डर जाती है देखकर। तो जो मार्शल होता है, एक्चुअल मार्शल होता है, वो सब कुछ संभाल देता है ये बोलकर कि भाई इसे बोलो कि ये मेरे को बचा ले,
सो ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं कि जैसे वो प्रिजनर होता है। तो अब वो समझ आती है, तो वो कहते हैं विद अ डीप ब्रेथ एंड रिटर्निंग कलर, उसे फिर से पूछती है, ओ यू आर अ मार्शल? ही सेड येस आई एम अ मार्शल। एंड पैसे के बारे में बात करते हैं, फिर वो एम्बेसडर के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, और फिर से वो उस पर वापस आ जाती है और बोलती है, सो नाउ यू आर वन ऑफ दोज डैशिंग वेस्टर्न हीरोज एंड यू आर द वन यू आर राइडिंग एवरी टाइम, एंड आप लोगों को शूट भी करते हो अगर वो कुछ गलत काम करते हैं, तो आप अच्छे अच्छे काम करते हो। तो इस तरह से अब वो फिर से, बट उसे थोड़ा सा अभी डाउट था, है ना, डाउट उसे था। तो होता क्या है, गर्ल्स आईज फैसिनेटेड वेंट बैक। अब एकदम से वो फिर बड़ी आंखें कर ना फिर से ब्रेसलेट, वो जो होता है ना हैंडकफ्स, ग्लिटरिंग हैंडकफ्स, पहले उन्होंने बोला था शाइनिंग ब्रेसलेट, तो ये भी आयरनी दी, तो उसकी तरफ फिर से देखती है। बट दूसरे इंसान फिर कहते अरे ये देख रहे कि तो ऐसे इसको पता ना चल जाए, तो कहते हैं डोंट यू वरी अबाउट देम मिस, इसके बारे में बिल्कुल टेंशन मत लो मिस। ऑल द मार्शल्स हैंडकफ देमसेल्फ टू देयर प्रिजनर टू कीप देम फ्रॉम गेटिंग वे। सारे मार्शल्स ये ऐसे करते हैं, ठीक है, मिस्टर ईस्टर्न को सब पता है, प्लीज इसकी तरफ मत देखो, मतलब पोलाइटली बोलता है। तो उसे वो पूछती है, विल वी सी यू अगेन सून इन वॉशिंगटन? तो ईस्टर्न कहता है नॉट सून आई थिंक। वो कहता है माई बटरफ्लाई डेज आर ओवर, मतलब उसके अच्छे दिन जो है ख़त्म हो गए हैं। तो बेसिकली ही मेंट दैट कि वो जेल में चला जाएगा तो भाई उसके बुरे दिन की शुरुआत हो गई है। बट उस गर्ल को लगता है, बिकॉज वो सोच रही होती है कि वो मार्शल है, तो उसे ऐसा लगता है कि इसे बहुत ज़्यादा काम है, इसीलिए ये कह रहा है माई बटरफ्लाई डेज आर ओवर, ठीक है। I love the West, said the girl irrelevantly. Her eyes were shining softly. तो कहते हैं, तो अब वो काइंड ऑफ उसे बोल रही है कि लाइक उसे ऐसा बताने की कोशिश कर रही है कि मैं वेस्ट में एडजस्ट हो सकती हूँ, मतलब हम ठीक है, आई लव द वेस्ट, तो उसे ऐसा बताने की कोशिश कर रही है, आई लव द वेस्ट। हर आईज वर शाइनिंग सॉफ्टली, शी लुक्ड अवे आउट द कार विंडो। तो एक वो बाहर देखती है और वो कहती है कि मेरी मम्मा जो थी वो तो बिना किसी ऐसे स्टाइल की नहीं बोल रही है, विदाउट द ग्लॉस ऑफ स्टाइल एंड मैनर। वो बोलती है मैं काफ़ी टाइम के लिए डेनवर में रही हूँ, मैंने समर डेनवर में ही बिताई है जो कि वेस्ट में है। तो वो कहती है कि मेरी मम्मा तो चले गए लास्ट वीक, बट मैं यहाँ पर हूँ एंड आई कुड एडजस्ट माई सेल्फ हेयर, एंड बिकॉज आई थिंक दैट कि यहाँ का एटमॉस्फेयर मेरे साथ अग्री करता है, एंड मेरे को नहीं लगता है कि मनी सारा कुछ होता है, एंड पीपल ऑलवेज मिसअंडरस्टैंड थिंग, वेयर एज वो कहती है पीपल ऑलवेज मिसअंडरस्टैंड द थिंग्स एंड रिमेन स्टूपिड, वेयर एज एट द एंड वॉट यू विल सी दैट people have understood what is the actual thing, but she remains stupid. So this is again an irony. He says, say Mr. Marshall, अब वो नहीं चाहता है कि जो मार्शल होता है वो नहीं चाहता है कि वो ज़्यादा टाइम इसके साथ बात करे, बिकॉज हो सकता है कि असली बात बाहर आ जाए, वो नहीं चाहता है ये सब कुछ। तो वो कहता है, से मिस्टर मार्शल, दिस इज़ एन क्वाइट फेयर, ये आपकी बात सही नहीं है, मेरे को जाना है, मेरे को स्मोक करना है, ठीक है, आपने बहुत बात कर लिया, आई एम हाफ डेड फॉर अ पाइप। तो ऐसा करके वो बोलता है। अब वो तो असलियत में तो वो प्रिजनर ही था ना, तो उसे तो माननी पड़ेगी उसकी बात। तो उसने बोला, द बाउंड ट्रेवलर रॉस टू देयर फीट, ईस्टर्न विद द सेम स्लो स्माइल ऑन हिज फेस। तो फिर से वो एक स्माइल के साथ उसको जैसे गुड बाय कहता हुआ जाता है। तो कहता है अरे नहीं, मैं ऐसे मना नहीं कर सकता हूँ ना, ये तो एक अनफॉर्चुनेट इंसान है, तो अनफॉर्चुनेट उसका मेरे को थोड़ा तो हेल्प करना चाहिए ना। तो इट सेज गुड बाय मिस फेयर चाइल्ड, ड्यूटी कॉल्स, माई वर्क इज कॉलिंग मी, आई कांट स्टे हेयर मोर। तो उसे बाय करके चला जाता है। तो फिर उसे वो बोलती है, क्योंकि वो तो यही समझ रही है ना कि भाई वो तो मार्शल है, तो उसे बोलती है वैसे बहुत बुरी बात है कि तुम ईस्ट में नहीं आ रहे हो, ठीक है, तुम्हें बट चलो लिव इन वर्ड जाना भी और ज़रूरी है। तो कहता हाँ लिव इन वर्ड जाना ज़रूरी है। तो जो साइड पे जो लोग बैठे हुए थे ना, उन्हें बात समझ लगी थी, ये इसे मतलब बुद्धू बना गया, क्योंकि जो उसका फ्रेंड था वो कौन था, विक्टिम था, तो उन्हें वो बात समझ में आ जाती है। तो 2 पैसेंजर्स इन अ सीट नियर बाय हैड हर्ड मोस्ट ऑफ द कन्वर्सेशन, ठीक है। तो उनमें से एक इंसान जो होता है वो बोलता है, दैट मार्शल इज़ अ गुड सॉर्ट ऑफ चैप। तो वो तो मिस्टर ईस्टर्न को समझ के बैठा है मार्शल, तो कहते हैं अरे हाँ ये तो बहुत अच्छा इंसान था। सम ऑफ द वेस्टर्न फैलोज आर ऑल राइट, कुछ वेस्टर्न फैलोज ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं। तो pretty young to hold an office like that, isn't he? asked the other.
अब बिकॉज ही वॉज तो अब वो कुछ और समझ रहा है, वो उसी को ही समझ रहा है जो एक्चुअल में मार्शल था। दूसरा इंसान था वो सही समझ रहा था और पहला वाला गलत समझ रहा था। तो वो यंग था, है ना, जो दूसरे वाला था वो यंग था, वेयर मिस्टर ईस्टन वॉज नॉट एज यंग एज दैट एक्चुअल मार्शल। तो फर्स्ट स्पीकर बोलता है यंग, वाई ओ डिडेंट यू कैच ऑन, से डिड यू एवर। तो वो कहता है कि तुम क्या बात कर रहे हो, कि तुम यंग की बात कर रहे हो, यंग कैसे हो सकता है, वो यंग यंग क्यों बोल रहे हो तुम, वो तो था ही नहीं। तो वो कह रहा है कि आपने कभी देखा है कि कोई प्रिजनर अपने राइट हैंड के साथ किसी को हैंडकफ करे। तो एक इंसान समझ रहा था कि वो जो गर्ल समझ रही थी वो भी वही समझ रहा था, फिर जो दूसरा वाला था वो थोड़ा क्लेवर था, वो समझ गया था कि भाई लेफ्ट राइट का उसे पता था, तो वो समझ गया था कि असली कौन है। सो here our story ends, and so here we come to know that appearances are often deceptive, because जो मार्शल था वो ऐसा क्यों समझ जाते हैं कि मार्शल है वो, बिकॉज वो वॉज द ही वॉज हैंडसम मैन, उन्हें लगता है कि भाई यही मार्शल होगा, बट दे हैड गॉन बाय द अपीयरेंसेस, जो कि बिल्कुल भी सही बात नहीं है। वेयर बाकी के जो लोग थे दे हैड बीन लाइक समथिंग, वो थोड़ा क्लेवर थे, उन्हें समझ में लग गया था। सो हेयर आर स्टोरी एंड्स, थैंक यू सो मच, बाय, हैव अ गुड डे, एंड प्लीज हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन इफ यू हैवंट येट। बाय।